said, is it possible to, if later, if there could be a session available, I'll they make could be a exposed to old animation. modification. Animations in the second decade after evolution of cinema. Till then it is continuing. Walt Disney Studio. Now there has been a present trend. Animations in mainstream feature film. We screened a film on the first day, which was partly animated. Avatar. So far we have only one full-length animated film. Apart from partly animated films as in the Ganesh, partly animated. It is not fully animated. But this Kutta or Kutti ka, that was fully animated. So animation was there from beginning. अभी जो animation feature film में आया, we cannot call it as a trend, क्योंकि एक ही तो फिल्म हुआ है हिंदी में, और बाकी जो हुआ है तो partial. No sir, if you look at Southeast Asia, in fact they have evolved to such a high level that in a way they have even overshadowed the live action cinema. We saw. In fact, Japanese manga. We saw Avatar. Avatar का आधा तो animated है. Sir, but Avatar is more like CGI. अवतार के डायरेक्टर को हालांकि ऑस्कर का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया था उन्होंने कि उनको लगा कि he will not get even a single Oscar. तो अब आप देखिए ये एक insiders doubt है. Insiders doubt मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हॉलीवुड डायरेक्टर को अगर लगता है कि भाई एनिमेशन का इस्तेमाल करने से आप मेनस्ट्रीम सिनेमा से अलग हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि एनिमेशन के बारे में बात करते हुए और सिनेमा के बारे में बात करते हुए या सिनेमा के बारे में बात करते हुए एनिमेशन की चर्चा करना जो है शायद बिल्कुल वाजिब नहीं होगा. भारत का कौन सा सिनेमा में फीचर फिल्म में सर्वप्रथम एनिमेशन यूज हुआ? हम तुम. किस साल का? Sure. Okay, thank you. I don't know, I have not seen the film, sir, but I know. Sir, 2004. Because it's actually called Mary Poppins effect. 1969. So can tell me your director if I can. Name of the director? Mridul Sen. 69. वो फिल्म हम लोगों ने देखी है. मेघा ढाके तारा. No. It's in Hindi. The film is in Hindi. ये हिंदी फिल्म. In search of the family. और बाकी जो तीन मेन एक्टर है, एक है मराठी, एक है उड़िया, एक है बंगाली. Complete different integration. Guest enough, sir. Bhuvan Som. Not Keith, sorry, sir. इसीलिए. I think need to see that. एनिमेशन के बारे में हम लोग 4-5 मिनट बात किए हैं. If anybody would have been interested or would be interested, 4-5 मिनट के बदले हम लोग 15-20 मिनट आधा घंटा बात कर सकते हैं. Thank you. अरे आपका डिपार्टमेंट है, हम तो आउटसाइडर हैं. और सवाल थोड़ा अगर चर्चा हो जाए, थोड़ी चर्चा हो जाए सर. Friends, let us re-welcome Mr. Rajesh Musa. We have already met him. Oh, he joined on the 19 तक आ गए. 16-17 तक. फुट जरूर गए. ठीक बोल दिया गया हमसे भेंट कर लेगा वो. ऑफिस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसमें बैठिए. अरे हमको मिल के तो हमको सेकंड बंद करके ही हमको से ड्राइवर साहब से बात की. तो हमको तो उन सबको बता दिए थे अपना जॉइंट सेक्रेटरी. You just wanted to know telefilm. Yes sir. A telefilm is just any feature film television. That is the telefilm. Only the format must be television oriented, like Betacam. They know. Good morning, everybody. A wonderful journey to the world of cinema, or kinema, that is what it was called first. And we also hope that we all go back home with a different perspective, a new vision,
This is the valedictory session, and this session, this enthusiasm, this zeal, I think you go back and you share with your friends and family. That is what we expect from all of you. I present bouquet to the director, IPRD, Mr. Ganesh Prasad. Thank you, sir. Thank you, Kunal. Thank you, sir. We have been very close to each other in respect of expressing our views. We had very, very frank discussions and interactions. We are grateful to the Principal Secretary of the Department, who has been taking a keen personal interest in the cinema-related matters, especially as they relate to students, to the director and all his colleagues who have taken a lot of interest and have helped us, and also the members of the faculty, including our coordinator, Mr. Vinod Anupa, Madam Binti, Dr. N.N. Pandey, Dr. Jarmangal Dev, and those who could not make it to come here. We feel that whatever has been learned during the week will be enough to answer at least 75% of questions that may come on cinema, especially in the admission tests. If one has to go to an institution on cinema, one has to pass through a tough admission test. Normally, participants say that they do not even understand most of the questions. I hope that problem has been taken care of by this workshop. Of course, cinema is a vast work, and there is never any limit to learning. And in this changing world, technology of everything will be out of date next year. Only I would request that please maintain your habit to think and to analyze whatever comes in your way, because these exercises are willing to help you in future, not relating to cinema. It may be about literature, about sports, about politics, about so it is the process of thinking and exercises that will help you in building your career. Well, in the valedictory, one should not make long speeches. So, President, for having cooperated in our week-long exercise. Thank you. On behalf of all the students present here, I'd like to thank the entire faculty, the members involved, the organizers, coordinators, and all the other crew members who have supported us willingly. Means without any, without complaining, you know. Even when we were late, they didn't complain. Thanks for that. And yeah, I did learn punctuality from this place. And the journey about learning, it was really enriching. I am really a changed person. I have changed the perspective, my mindset about cinema. मतलब भोजपुरी तो मेरे लिए कुछ और ही थी पहले. And watching the 1962 movie was really a very good experience. And the Avatar, I watched it critically first time. The first time I had watched it when it was released, it was for entertainment factor. And Weldon Abba, this was my first time, and that was a movie that I watched technically. So for me, it was a learning experience, and I would like to share that I have plenty of notes. And I'm happy to have them. And yesterday, I had the class of film review and drama review. We were having it. And
I was proud to answer all the questions that my teacher was asking from these notes. Thank you. Thank you. So it was really a candid expression by a student, and anyone else would like to say some male voice? I think that my 5-6 day experience that I had there was most overwhelming and most satisfying, and in fact I was left for wanting for more. By the time it was finished, I thought I had just started, and even though it was just a 4 or 5 day affair, I think the kind of camaraderie that we had developed with our batchmates and with our classmates, I think it's going to stay with us, and we're going to use this dynamics, and we're going to use this opportunity to not just excel in the field of cinema, but also to use this as a tool to do something for Bihar and Patna, so that tomorrow when people hear about the state or hear about the city, they take this name with pride and glory. Thank you so much. कोर्स जो 7 दिनों का था, इसमें हमने काफी कुछ सीखा, और खास के मैं जब यहाँ ये सोच के आया था कि काफी कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन यकीनन मिला, और उस जितने में लेकिन फिल्मों के बारे में वो इतना डीपली एनालिसिस जो यहाँ मिल सका, खास के हर एक सीन्स के बारे में, हर एक टॉपिक के, हर एक फिल्म्स के रिलेटेड हर एक टॉपिक के बारे में यहाँ इतने अच्छे अच्छे शिक्षकों के मार्गदर्शन मिला, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि थोड़ा सा अगर इसके कुछ दिन और अगर बढ़ा दिया जाता तो हमें कुछ और चर्चा हो जाती। इसलिए आदरणीय प्रधान सचिव सर से मेरा आग्रह निवेदन है कि अगर भविष्य में इस तरह के कोर्स को अगर कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया जाए तो और स्टूडेंट के लिए और बहुत ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और इसका जवाब इधर से चलिए, इधर से नीतू, एक तरफ से आए, दूसरी तरफ से निकलिए। आप नीतू कन्या सिंह बीरेडी। नीतू कुमारी नहीं है? कृपा अंकिता प्रिया। इधर उधर लीजिए, इधर देखते हुए निकल जाइए, आगे निकल जाइए। From one side you people come and the other side. कोमल। इधर देख लो, इधर देखो। चलो चलो चलो। हाँ देखो, फरियाल रूमी। कोमल। दोनों एक बार दोनों तरफ देख लीजिएगा। सुनंदा झा। ये ठीक, आप एक ही तरफ देख लीजिएगा। चलिए चलिए, बढ़ जाइए। सुनंदा झा। फरियाल रूमी आप हैं? इधर देखो, फरियाल रूमी दोनों तरफ देख लो, इधर भी उधर भी। ज्योति शर्मा। दोनों तरफ देख। मलाह जहां। ज्योति शर्मा एब्सेंट। प्लीज कम फास्ट। मलाह जहां। ज्योति। मलाहत जहां। अच्छा, मलाहत जहां। नाम ठीक करना होगा। इशिता चाहत। सौव्या अब्दीली। इशिता चाहत, सौव्या अब्दीली, सप्तदीपा घोष। देखो, सप्तदीपा घोष, साधना कुमारी, अमन चंद्र वर्मा, वचन देव कुमार, रोहित। उधर मुड़िएगा प्लीज। चलो फोटो इधर से उठ रहा है। आप कैमरा का बेसिक भूल गए। You have to face the camera. वचन दे। आपके लिए दिक्कत हो गई। रघुवंश, रत्ना गांगुली, नुपुर एंड रत्ना, रिंकी कुमारी, रत्ना गांगुली, रत्ना गांगुली कौन है? आप रिंकी कुमारी, शुचि स्मिता चक्रवर्ती, रिंकी कुमारी, कुणाल दत्त, कुणाल, समृद्धि दीक्षित, श्रुति शिक्षा, फिरदौस, सुरभि लाहिड़ी, कुमारी, सुरभि नहीं है। सुरभि, नेहा कुमारी, नेहा कम पास। Now sir, Neetu has come sir. Where are you? नेहा। आई है? And सुरभि? रिंकी,
एक बहुत बड़े संतोष की बात ये है कि हम लगातार इस तरह की कार्यशालाओं को न केवल ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, अपितु इन कार्यशालाओं में जो पहली कार्यशाला में जिस उत्साह के साथ आप लोगों की भागीदारी हुई थी, उसी उत्साह के साथ सब्सीक्वेंट कार्यशालाओं में भी आप लोगों की भागीदारी रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक लंबे समय तक द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज सच वर्कशॉप्स एंड टू इंश्योर दैट द सेम enthusiastic response remains। तो ये संतोष की बात है, हम सब के लिए संतोष की बात है। और ये इसको भी दर्शाती है कि जो कुछ इन कार्यशालाओं में हो रहा है उससे बच्चों को लाभ पहुंच रहा है। इसीलिए हम साल दर साल इसको ऑर्गेनाइज करा पा रहे हैं और आप लोग पूरी तादाद में इसमें भाग ले रहे हैं। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये कि संभवतः तमिलनाडु को छोड़कर, जहाँ की राज्य सरकार का अपना टीवी और फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ हम इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन सरकार के तत्वावधान में करते हैं। तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है और इसको जारी भी रहना चाहिए। तमिलनाडु में भी आउटसाइडर्स के लिए नहीं है, वो केवल कॉलेज और स्टूडेंट के लिए। तो दास साहब ने मुझे बताया कि तमिलनाडु की जो राज्य सरकार है वो भी आउटसाइडर्स के लिए उसको नहीं खुला करती है ऐसे कार्यक्रमों को, जबकि हमारे यहाँ कार्यक्रम में कोई भी आ सकता है। एक ही स्टेट है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि लगातार हमने 10 कार्यशालाएं आयोजित कर ली हैं और 10 कार्यशालाओं में लगभग हर कार्यशाला में 40 से 45 स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। आज जब आप लोग अपने फीडबैक दे रहे थे तो मुझे ये जान के खुशी हुई कि आपको इस कार्यशाला से ये लाभ जरूर मिला कि आप फिल्मों को एक आर्टिस्टिक क्राफ्ट के रूप में समझ पाए, क्योंकि फिल्में भी एक कला की अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो वो कैसे अभिव्यक्ति की गई उसके तकनीकी पहलुओं को जानना बहुत आवश्यक है और आप लोग इसको जान पाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ हैं। मैं आशा करता हूं कि आप में से वो लोग जो कि मास कम्युनिकेशन या इससे संबंधित कोर्सेज में हैं उनको तो लाभ हुआ ही होगा। जो लोग इससे सीधे संबंधित कोर्सेज नहीं भी कर रहे हैं उनमें भी फिल्मों की समझ, फिल्मों को अप्रिशिएट करने का मादा पैदा हुआ, वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में जो इतनी अच्छी फैकल्टी हमारे साथ है ये इन प्रयासों में जुड़े रहेंगे और आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके कक्षा के अन्य विद्यार्थी जो कि इस तरह की कार्यशालाओं में भाग नहीं ले पाए वो आगामी कार्यशालाओं में भाग लेंगे। जहाँ तक सूचना और जनसंपर्क विभाग का प्रश्न है, हमारा तो हमेशा से ये उद्देश्य रहता है कि हम जो विभाग के रूटीन कार्य हैं उनसे हटकर कुछ नया, कुछ इनोवेटिव काम करें। तो ये उसकी एक कड़ी है और इसको हम इसी तरह से अनवरत जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर अभिवादन के शब्दों के लिए। आदरणीय श्री आर्यन दास जी, सचिव महोदय, मिंती जी, इस कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थीगण, हमारे सूचना जनसंपर्क विभाग के सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उपस्थित कर्मीगण, आज खुशी की बात है कि आज हम 10वीं कार्यशाला का समापन समारोह कर रहे हैं। हम इसके लिए अपने सचिव महोदय का जो आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने हमें नित्य प्रति कुछ इस तरह के नए कार्यक्रम के लिए इन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और इन्हीं के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम सफल हुआ। मैं तहे दिल से जैसे कि धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ श्री आर्यन दास जी का, जिन्होंने लगातार अपनी मेहनत से आप लोगों को मार्गदर्शन दिया है। मिंती जी को भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं प्रतिभागियों का भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस कार्यशाला को सही ढंग से चलाया और उपस्थिति देकर हम लोग का प्रोत्साहित किया है। इनके लिए इन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ और हम अब सूचना जनसंपर्क विभाग के सभी कर्मियों का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने
लगन से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अंदर सबको मैं धन्यवाद। यहाँ एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट है। छात्रों ने ये आवाज, हमारा प्रयास ये रहता है कि इसका क्वालिटी के लिए अपनी एक डेडिकेटेड फिल्म बनाने के लिए बच्चे भी तैयार हैं। सूचना विभाग की ओर से कई फिल्में बनती हैं, क्या इन बच्चों को यूज किया जाएगा? बने फिल्में, और अगर यहाँ के बच्चे भी बनाना चाहेंगे तो उनका भी स्वागत है। अभी भी जो फिल्मकार बनाते हैं उनमें से अधिकांश बिहार के ही हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सर एक और स्टेट्स में सूचना, तो हम अवश्य उस पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। चूँकि ये बिहार एकमात्र है, इसलिए बहुत संख्या में आवेदन पत्र आता है। दिसंबर महीना का कोर्स के लिए हम लोग को 150 आवेदन पत्र मिला था, लेकिन चूँकि सीट है मात्र 30-35, इसलिए हम लोग को चुनना पड़ता है। लेकिन ये धारणा हो रहा है कि आजकल का जो छात्र है वे सिनेमा और ऑडियो विजुअल्स का इम्पोर्टेंस और महत्व को रियलाइज किए हैं और अधिक से अधिक संख्या में सिनेमा, मीडिया, मास कम्युनिकेशन के बारे में सर इधर देखिए जानने के लिए आग्रही है। इधर कुछ बातें हो रही हैं। लगता है जिस तरह से अदर स्टेट्स में फिल्मों को बढ़ावा दिया जाता है उसके बाद सारे जो भी काम किया जाता है उसको अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन बिहार में थोड़ा ये रुक सा गया है। आप जो प्रश्न किए उसका उत्तर संक्षेप में देना संभव नहीं है। बिहार में कुछ खास समस्या है। एक समस्या ये है कि बिहार है हिंदी भाषी राज्य, और कोई फीचर फिल्म बनेगा अगर हिंदी में बनेगा तो हिंदी मेन स्ट्रीम सिनेमा के साथ बिहार का मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म टक्कर नहीं दे सकता। इसलिए यद्यपि 1934 में सर इधर देखिए कैमरा साइड में बिहार में एक हिंदी फिल्म बनाया गया पुनर्मिलन, उसके बाद 1963 में गंगा मैया भोजपुरी फिल्म तक एक भी हिंदी फिल्म बीच में नहीं बना। बाद में शिवेंद्र सिन्हा, प्रकाश झा वो सब हिंदी फिल्म बनाने लगे। उसमें जो फिल्म मेकर्स हैं वे सब, उनका इंटेंशन कमर्शियल है। उनका इंटेंशन ये नहीं है कि आर्ट फिल्म बनाए या एजुकेशन फिल्म बनाए जिसमें उनको इनकम हो। जो फिल्म बनाते हैं पैसा कमाने। ठीक, वो लोग जानते हैं कि बिहार में अगर हम हिंदी फिल्म बनाएंगे तो वो फिल्म पैसा नहीं कमाएगी। भोजपुरी फिल्म अभी करीब 150 भोजपुरी फिल्म बन करके तैयार है, जिसको कोई सिनेमा हॉल दिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस स्थिति में ये स्वाभाविक है कि बिहार में फिल्म बनाने का प्रयास नहीं का बराबर होगा। जो भी फिल्म बनाते हैं बिहार में वे भी स्टोरी बिहार का हो सकता है, कुछ मेन एक्टर्स बिहार का हो सकते हैं, लेकिन फिल्म मोस्टली बनता है बिहार के बाहर। बिहार सरकार को कुछ करना चाहिए। बिहार सरकार, ये तो बिहार सरकार को ये पूछना है। बिहार सरकार जैसे आप ही लोग जो सूचना हम लोग को देते हैं समाज पत्र, रेडियो के थ्रू, तो बिहार सरकार कोशिश कर रहा है फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को एक्टिवेट करने के लिए। और हम लोग का बीच में ऑफिसर्स में से जो सिनेमा के बारे में सबसे ज़्यादा विज्ञ है श्री त्रिपुरारी शरण, जो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया उन्हें का डायरेक्टर रह चुके हैं, उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। तो कुछ प्रयास किया जा रहा है कि बिहार में भी एक फिल्म स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस वगैरह बनाने के लिए हम लोग यही आशा करें कि सरकार का ये जो प्रयास है वो सफल हो। ओके सर, थैंक यू।